थैंक यू अभी। प्रतीक, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, चलो। सो दोस्तों, we are dealing with topic biological classification, and in which we discussed about what is meant by biological classification. We discussed about the basic definition of biological classification. Okay, then we discussed about the topics to be covered in these lessons, and we discussed about the introduction of this part. What is biological classification? It is the classification of living organism into groups and subgroups based on their similarities and differences. इसे कहते हैं दोस्तों, और dissimilarities. That is called the biological classification. Now, why there is a need of classification? As we all know that it is humanly impossible to study each and every living organism. So we grouped these organisms and we studied the representative one. इसके बाद दोस्तों, classification help us to identify the organism. That is, newly discovered organism can be identified with the help of classification, and classification also help us to establish an evolutionary relationship among the organism. Now, classification, because of classification, it is a very convenience to study all the organism. Now, फिर दोस्तों हमने देखा that earliest classification is based on use of organism, MCQ. During human settlement or during civilization, during just initiation of agriculture, that all living organisms are classified on the basis of their use. That is, some organisms are used as a source of food, some organisms are used for clothing, and some organisms are used to making shelter. Now, Aristotle is the first man who made a scientific attempt to classify living organism, and he classified those plant and animal into different groups. Then came Carl Linnaeus, and who proposed two-kingdom classification system. He is also father of taxonomy and also proposed binomial nomenclature. And according to Carl Linnaeus, he classified all living organisms into two kingdoms, kingdom Plantae and kingdom Animalia. There are certain different criteria used by Carl Linnaeus, like cellule and motility and nutrition or stimulus to response to external stimuli and all that. And he classified दोस्तों bacteria, cyanobacteria, fungi, algae, fern, mosses, fern, gymnosperm, angiosperm into the kingdom Plantae. जिनको भी सेल वॉल है वो सब किंगडम प्लांटे में रख दिए, और जिनको सेल वॉल नहीं है वो किंगडम एनिमलिया में रख दिए. जैसे प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, they are kept in kingdom Animalia. But what are the drawbacks of two kingdom classification? Drawback of two kingdom classification दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा. What are the limitations of Carl Linnaeus classification, or what is the limitation of two kingdom classification? Either they will use the term limitation, drawback, or failure. What is the failure of two kingdom classification? So Carl Linnaeus failed to explain or failed to distinguish between prokaryotic and eukaryotic cell, failed to distinguish between दोस्तों unicellular and multicellular cell, also failed to distinguish between autotrophic and heterotrophic organism. फिर उसके बाद आज से पढ़ेंगे, that is दोस्तों, this is slide number 1. That is the concept of three kingdom classification. There is the concept of three kingdom classification. Now this three kingdom classification, it is proposed by, ये NCERT में दिया नहीं है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कितने क्लासिफिकेशन है. ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में. ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों, इट इज प्रपोज्ड बाय हिकेल्स. याद रखो, इट इज प्रपोज्ड बाय हिकेल्स. हिकेल कैसे याद रखेंगे? हिकेल आणि थ्री. हिकेल जो वर्ड है उसमें तीन अक्षर है, ही के ल.
So three kingdom classification proposed by Haeckel by introducing kingdom protista, by introducing kingdom protista. ये भी क्वेश्चन आएगा, but kingdom protista is introduced by, or the term kingdom protista is coined by, दोस्तों आंसर is Haeckel. And kingdom protista में almost most of the unicellular eukaryotes are included into the kingdom protista. याद रखो दोस्तों, most of, not all, but most of unicellular eukaryote, ये शब्द आया unicellular most, मैंने how to get 360 out of 360 मार्क्स इन बायोलॉजी में बताया है, जहां पे unicellular आएगा, most of आएगा तो उसके ऊपर एमसीक्यू है. So most of unicellular eukaryotes, eukaryotic organism or eukaryotes, these are the organism which have eukaryotic cell. So most of unicellular eukaryotes are included in, ये क्वेश्चन आता है, are included in kingdom protista. kingdom protista, उसमें कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, जैसे कि yeast is a unicellular eukaryote but belong to kingdom fungi. Chlorella is a unicellular eukaryote but belong to kingdom plantae. So ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है दोस्तों, इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से तीन किंगडम है, दैट इज, याद रखो कौन से तीन किंगडम है, दैट इज दोस्तों किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमलिया. दीज आर द थ्री किंगडम इन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, फिर दोस्तों फिर आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. नाउ दिस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन is proposed by four kingdom classification. It is proposed by दोस्तों Copeland by introducing kingdom Monera. ये कैसे याद रखेंगे, ये कैसे याद रखेंगे, HP से याद रखेंगे. ओके, Haeckel introduced which kingdom, पूछेंगे तो दोस्तों याद रखो HP ब्रांड है ना लैपटॉप का, तो HP Haeckel प्रोटिस्टा. नाउ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों, इट इज प्रपोज्ड बाय, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रपोज करना है तो दोस्तों ऐसा कुछ प्रपोज कराना पूरी दुनिया उसे याद रखे. पूरी दुनिया, कब जाके ये 18th 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में इन लोगों ने काम किया है, और कहाँ यूरोप में हम इनका नाम अभी भी ले रहे हैं, कहाँ इंडिया में, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, औरंगाबाद में. तो ऐसा कुछ प्रपोज करो लाइफ में कि पूरी दुनिया उसे याद रखे. ओके, ये छोटे मोटे प्रपोज के पीछे मत भागो. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों, इट इज प्रपोज्ड बाय, वाओ, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय, कल ही बोला था मैंने, कोपलैंड, याद कैसे रखेंगे, कोपलैंड 4 अक्षर है, और फोर. सो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड बाय इंट्रोड्यूसिंग, कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया, ये भी क्वेश्चन पूछेगी, बाय इंट्रोड्यूसिंग किंगडम मोनेरा, by introducing kingdom Monera. Mono means one, आप सबको पता है, mono means one. So दोस्तों, so all of the unicellular prokaryote are present in kingdom Monera. ये याद रखो, all of unicellular prokaryotes, जो unicellular prokaryote हमेशा ही unicellular होते हैं, but all of unicellular prokaryotes, जैसे कि दोस्तों बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया are present in Monera, are दोस्तों they are present in Monera, kingdom Monera. तो अकॉर्डिंग टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से किंगडम है ये आएंगे दोस्तों, तो किंगडम मोनेरा सबसे पहले, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फिर दोस्तों प्लांटे एंड एनिमलिया. सो दीज आर द चार किंगडम और दीज आर द फोर किंगडम अकॉर्डिंग टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. याद रखो, दिस इज स्लाइड नंबर 1. और ये कैसे याद रखेंगे दोस्तों, दैट किंगडम मोनेरा, कोपलैंड प्रपोज्ड किंगडम मोनेरा दोस्तों, तो याद रखेंगे सीएम, जो हमारे सीएम है ना उद्धव जी ठाकरे, वो हमेशा टीवी पे आके हमें अभी गाइड कर रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऑल दैट. तो सीएम याद रखेंगे, याद रखो. चलो आगे चलते हैं दोस्तों. सो दिस इज स्लाइड नंबर 1, दिस इज स्लाइड नंबर 1. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं और जो हमारे सिलेबस में दिया है उसके बारे में बात करेंगे. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. वाह,
5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन आएगा, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, वाओ, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, मोनेरा, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, एचपी, जब भी आपका लैपटॉप एचपी का आपका लैपटॉप दिखेगा तो याद रखने का, टिकल प्रपोज्ड किंगडम प्रोटिस्टा। जब भी उद्धव जी ठाकरे का फोटो दिखेगा, ओके, एज अ सीएम, तो बोलने का दैट इज सीएम मींस कोपलैंड प्रपोज्ड किंगडम मोनेरा, ऐसे याद रखिए। छोटी छोटी बात है दोस्तों, क्या है ना, ये बहुत बड़ी ट्रैफिक है, ये तो बायोलॉजी की ट्रैफिक है और फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्रैफिक आपके दिमाग में जाना बाकी है। तो ट्रैफिक जाम ना हो इसीलिए क्या करते हैं, हम ग्रीन सिग्नल लगाते हैं रोड के ऊपर, या फिर ग्रीन, रेड और येलो सिग्नल लगाते हैं। और साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस है, ओके, रिस्पेक्ट फॉर देम, तो वो जो ट्रैफिक पुलिस है दोस्तों, वो काम क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो ट्रैफिक नहीं होने देते, और सिग्नल भी जो है वो ट्रैफिक नहीं होने देते। तो ये निमोनिक, स्ट्रीट, सॉन्ग, स्टोरीज, दे एक्ट एज अ ट्रैफिक पुलिस और सिग्नल टू 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 मेक दैट ट्रैफिक जो है हमारे दिमाग में नॉलेज की वो फ्लुएंट हो जाए। ओके, इसीलिए स्लाइड नंबर 2 बात करते दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इट इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट एच विटेकर इन 1969। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ये जो दोस्तों, इट इज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया, इट इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट, बहुत सारे रॉबर्ट है बायोलॉजी में, ये है आर एच विटेकर बोलेंगे या फिर रॉबर्ट एच विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर मामा। और ये कब प्रपोज किया ये भी आता है दोस्तों, याद रखो 1969 में। वाह, ये क्वेश्चन है 101%, 1969, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ना ये जो रॉबर्ट विटेकर आए तो दोस्तों इन्होंने ना थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लिया सेल का। तब तक ना, ये 1969 मींस बहुत रिसेंट है, तब तक माइक्रोस्कोप, ये सब माइटोसिस, मियोसिस, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये सब पता चल गया था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बारे में सब डिटेल में पता चल गया था। तो रॉबर्ट विटेकर आए और बोले, सुनो 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 सुनो, अब तक जो भी क्लासिफिकेशन हुए हैं वो इतने पूरे नहीं है। I came with a detailed research and I am going to propose a 5 kingdom classification system. I am going to propose a 5 kingdom classification system. अब तक before 1969 fungi was kept in kingdom Plantae, but दोस्तों he proposed, that is 5 kingdom classification proposed by R.H. Whittaker, and he introduced a new kingdom to the world, and that is kingdom fungi। ये एमसीक्यू है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके, ये जो रॉबर्ट विटेकर है, आर.एच. विटेकर, he introduced kingdom fungi, और उसने कहा ये जो हेटेरोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर, जनरली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, जो मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, इनका अलग किंगडम होना चाहिए। एंड he classified all living organism into दोस्तों 5 kingdoms, याद रखो। ओके, दैट इज, और जो 5 किंगडम है दोस्तों, 5 किंगडम्स कौन से है, 5 किंगडम्स बाय आर.एच. विटेकर, तो ये जो 5 किंगडम है दोस्तों बाय आर.एच. विटेकर, और ये है दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, kingdom fungi, some people call it as a fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. Wow. Now, kingdom Monera, Protista, fungi, Plantae, and Animalia, and this kingdom fungi is given by दोस्तों, proposed by R.H. Whittaker. तो नाउ ये जो है दोस्तों याद रखिए, ये जो है मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, मोनेरा इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, मोनेरा इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है दोस्तों, they are included into the monera। Prokaryotes means these are the organism having prokaryotic cell,
प्रोटिस्टा में होते हैं दोस्तों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जो यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है पर उनमें यूकैरियोटिक सेल है, दे आर इंक्लूडेड इनटू किंगडम प्रोटिस्टा। और ये जो तीन है जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन दीज थ्री दे आर दोस्तों मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। एमसीक्यू मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। नाउ तो ये किंगडम है दोस्तों, इसके डिटेल में जाएंगे हम जरूर। और इस टॉपिक में ये जो तीन किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और सेपरेट टॉपिक है किंगडम प्लांट के ऊपर, और किंगडम एनिमलिया के ऊपर भी सेपरेट टॉपिक है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। मैं उसे बोलता हूँ पीके एक के। पीके मीन्स प्लांट किंगडम एंड एक के मीन्स एनिमल किंगडम। ये सेपरेट टॉपिक है, पर इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगा के बारे में डिटेल में। और we just going to discuss in brief about the general characteristic of plant kingdom and animal kingdom. Now फिर जो विटेकर है दोस्तों, विटेकर ने कहा कि मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, I use certain criteria to classify all these living organism. तो दोस्तों what are the criteria, क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोट also contain animal या नो, गलत, ओके नहीं, नो प्लीज पे अटेंशन, ओके जरा ध्यान दो दोस्तों, ओके जरा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी। Now what are the criteria used by Whittaker? 5 kingdom classification के लिए क्या criteria? Criteria means basis. What are the criteria used by R.H. Whittaker to classify living organism into 5 kingdom? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। That is slide number 3 दोस्तों। criteria means basis, criteria used by R.H. Whittaker, criteria used by R.H. Whittaker to classify all living organisms to 5 kingdom, and these are number 1 दोस्तों, number 1 that is cell structure। क्या है? cell structure, cell structure। number 2 that is thallus यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अनदर क्राइटेरिया, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 दैट इज दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, मैं डिटेल में बात करूंगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और 1 2 3 4 दैट इज दोस्तों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और नंबर 5 दोस्तों दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। इसी को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। पर हम याद कैसे रखेंगे? कैसे? इवोल्यूशनरी या फिर फाइलोजेनिक। एनसीईआरटी में ये शब्द यूज किया है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, याद रखो, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म मींस व्हिच ऑर्गेनिज्म इज इवॉल्व फ्रॉम व्हिच वन। तो याद रखो दोस्तों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसे कहते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। सो दीज आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय आरएच व्हिटेकर। ये क्वेश्चन आता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट यूज्ड बाय आरएच व्हिटेकर टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो याद कैसे रखेंगे दोस्तों? ये बहुत ही इजी है, ये 5 पॉइंट याद रखेंगे जो हमारा टेक्स्ट बुक है, दैट इज एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। तो दोस्तों उसी से याद रखें। कैसे याद रखेंगे? दैट इज एनसीईआरटी। कैसे याद रखेंगे? याद रखो एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों एन मतलब यहाँ पे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला, एन मीन्स दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वाला एन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अमंग द 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन आके गया है, ये पुराना कॉपी है, एंड दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
दोस्तों सी, यहाँ पे सी का मतलब होता है दैट इज सेल स्ट्रक्चर, आइदर वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ई मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसी है, आर मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, और टी मतलब दोस्तों थैलस मींस बॉडी होती है। व्हाट इज मीन बाय थैलस? थैलस मींस अ बॉडी विदाउट रूट स्टेम एंड लीफ, इसे कहते हैं दोस्तों थैलस, याद रखो कहीं तो भी। थैलस का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय थैलस? नोट लिखता हूं, नोट दोस्तों, थैलस का मतलब होता है, थैलस का मतलब होता है अ बॉडी, खास करके प्लांट बॉडी होता है, प्लांट बॉडी विदाउट, जिसको ना रूट है, प्लांट बॉडी विदाउट रूट स्टेम एंड लीफ, सच प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस एंड दैट इज प्रेजेंट इन algae। एमसीक्यू, इसीलिए algae को कहा जाता है थैलोफाइटा। ना दोस्तों ये 5 जो है एनसीईआरटी, दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लोग बोले अरे वाह विटेकर, बहुत ही बढ़िया, तो सेल स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे क्लासिफाई किया? तो वो बोला कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है दोस्तों, कुछ ऑर्गेनिज्म दे आर आइदर प्रोकैरियोटिक, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक को रखेंगे किंगडम मोनेरा में, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू ऑल दीज 4 किंगडम, दैट इज अ प्रोटिस्टा। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू हाउ मेनी किंगडम? 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटन, एनिमल। फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन में, तो दोस्तों कि बॉडी डिफरेंशिएशन जो होता है, बॉडी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट और एब्सेंट, कुछ लोगों में बॉडी डिफरेंशिएशन है, मींस बॉडी के अलग अलग पार्ट है, बॉडी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट या फिर एब्सेंट। तो कुछ यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर होके भी कुछ लोगों में बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं है। बॉडी डिफरेंशिएशन मींस, बॉडी डिफरेंशिएशन मींस अलग अलग पार्ट होना बॉडी, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रूट है, सिंथेसिस ऑफ फूड लीफ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड उसके लिए स्टेम है। तो बॉडी डिफरेंशिएशन है या नहीं, ये है थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोस्तों 2 होते हैं, सम आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, खुद का खाना खुद बनाते हैं, सम आर ऑटोट्रॉपिक, और दोस्तों सम आर हेट्रोट्रॉपिक। कोई ह्यूमन बीइंग और हेट्रोट्रॉपिक, किंगडम एनिमलिया में और किंगडम फंगाई में, याद रखो दोस्तों, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ओके, किंगडम एनिमलिया और किंगडम फंगाई में ऑल ऑफ देम आर हेट्रोट्रॉपिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दोस्तों, हाँ, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, प्लांटे में क्या पाया जाता है? एटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दुनिया में 2 ही मोड की रिप्रोडक्शन है, 2 ही टाइप की रिप्रोडक्शन है, आइदर असेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल और एसेक्सुअल में भी अलग अलग है, और सेक्सुअल, asexual or sexual। और evolutionary relationship means it is an, means it discuss about the common ancestor कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा एनिमल, कौन सा एनिमल से इवॉल्व हुआ है। सो दिस इज अबाउट दोस्तों evolutionary relationship। So these are the 5 criteria used by Whittaker to explain 5 kingdom classification। और इसी के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जब भी हम आगे जाके ये 3 फाइलम बात करेंगे, 3 फाइलम के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, तो ये 5 पॉइंट आने ही आने हैं, बाकी के दूसरे भी आएंगे उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, पर ये 5 पॉइंट मस्ट है। तो लोग बोले बहुत ही बढ़िया विटेकर। तो ये जो है क्लासिफिकेशन बहुत फेमस रहा, कहा कब दिया था? 1969 में लोगों ने विटेकर का नाम ले लिया, बोले विटेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अरे एवढंच काय, विटेकरची मिरवणूक पण निघाली, विटेकरची मिरवणूक पण निघाली आणि लोकांनी त्याला डोक्यात घातलं, त्याला हार घातले, गुलाल उधळला, लोक नाचायला लागलेत, अरे वा काय जबरदस्त आहे, आता आम्हाला कळालं की आमच्याकडे 5 किंगडम आहे। क्रेझी होते लोक त्यावेळेस सायंटिस्ट बाबतीत, जसं आता नेत्या बाबतीत क्रेझी। आणि विटेकर खुश झाला, दिवसभर सगळ्यांनी त्याला कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन। ओके, तो ऑल लिविंग, विटेकरने क्या किया, त्याची स्टेटमेंटच होती, आय क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन प्लैनेट अर्थ इनटू 5 किंगडम। और दोस्तों फिर ये सब हो गया, मिरवणूक झाली, त्याची सगळं झालं आणि विटेकर घर आले। विटेकर घरी आल्याच्या नंतर लक्षात ठेवा, घराच्या बाल्कनीमध्ये विटेकर असा इव्हिनिंगला, इव्हिनिंगचा असणार आहे बघा, 6 6:30चा वेळ, आणि विटेकर असा चहामध्ये, सॉरी बाल्कनीमध्ये चहा घेत होता, थकला होता थोडस, आणि स्वतःच विचार करत होता, आजचा दिवस खरंच छान गेला, आज लोकांनी माझं खरंच खूप कौतुक केलं,
आणि त्याचा मूड खूप छान होता. आणि तेवढं चालू असताना लक्षात ठेवा की त्या बाल्कनीमध्ये त्याच्या घराच्या 3 लोक हळूच दबक्या पावलाने आले. विटेकर मामा, विटेकर मामा. विटेकर म्हणला, कोण आहे तुम्ही? मी व्हायरस आहे, व्हायरस. आणि हा व्हिरॉइड आहे, माझा छोटा भाऊ आहे व्हिरॉइड. आणि तो पलीकडे लायकेन्स आहे, लायकेन्स. ओके. तो विटेकर मामा, आपने पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया है। ओके, किसी ना किसी किंगडम में डाला है, तो प्लीज हमें भी डाल दो कहीं ना कहीं। कौन बोल रहा है? वायरस बात कर रहा है, वायरस, विटेकर। ठीक है, हमें भी देखो कहीं तो भी डाल दो, हमारा भी स्टडी करो। तो विटेकर का मूड बहुत ही अच्छा था। तो विटेकर बोला, मूड अच्छा भी था और उसको थोड़ा सा गर्व भी महसूस हो रहा था, गर्व। तो लोगों ने मुझे, मेरा नाम बहुत लिया है, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, अभी मैं हूँ क्लासिफिकेशन की दुनिया में, अभी मेरा ही क्लासिफिकेशन चलेगा। तो वायरस को देखा उसने। वायरस को देखने के बाद इधर से देख रहा है, उधर से देख रहा है। एक्चुअली विटेकर इज सर्चिंग फॉर द सेल, क्योंकि उसका क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर। तो वायरस में उसको सेल ही नहीं मिली। तो वायरस को उसने फिर, विटेकर बोला, मैं तुम्हें क्लासिफाई नहीं कर सकता। वायरस बोला, प्लीज प्लीज देखो, इधर से देखो, उधर से देखो। विटेकर, मैं बोला ना, मैं तुझे क्लासिफाई नहीं कर सकता, चल फुट। वायरस को लात मार दी। फिर विराट बोले, मुझे तो भी देखो अभी। वो डरा हुआ था विराट, उसको भी देखा। विटेकर को समझ ही नहीं आया क्या है। तो विटेकर विराट को भी लात मार दी। अरे तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं हो, मैं तुम्हें कैसे क्लासिफाई कर सकता हूँ। फिर लाइकेंस आया, और लाइकेंस तो समझ में ही नहीं आया, ये क्या है, ये फंगा है, ये algae है, ये क्या है एग्जैक्टली। विटेकर बोला, चलो भागो। फिर आए बड़े क्लासिफाई होने। मैं नहीं क्लासिफाई करने वाला, चलो। आप में ना सेल है ना कुछ नहीं। बेचारे लाइकेंस, वायरस और वीरॉइड्स जा रहे हैं। सबसे आगे है लाइकेंस, फिर उसके पीछे वीरॉइड्स, और सबसे पीछे है वायरस। जा रहे दरवाजे के ऊपर चले गए, और वायरस ने फिर गुस्से से देखा, विटेकर। विटेकर बोलो, क्या याद रखो, आज तुमने हमें ठुकरा दिया है, पर जब जब भी आपके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा जाएगा, तब जाके लोगों को बता जाएगा कि विटेकर फेल टू क्लासिफाई वायरस, विराइड और लाइकेंस। मैं ये तुम्हें श्राप देता हूं। विटेकर बोलो, वायरस क्या हुआ? यही है, ये मेरा श्राप है। हर बार जब भी तेरा कौतुक किया जाएगा, या जब भी तेरा नाम लिया जाएगा, उसी के साथ ही तेरा फेल्यूर भी बता जाएगा कि विटेकर फेल टू क्लासिफाई वायरसेस, विराइड एंड लाइकेंस इन हिज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और फिर विटेकर आ गया, विराइड भी सामने आ गया। विराइड बोलने लगा, फ्यूचर में विटेकर, इंडिया में नीट नाम की एग्जाम होने वाली है, और उस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ लोगों को बताया नहीं जाएगा, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, व्हाट आर द फेल्यूर ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन, और तब जाके हमारे नाम आएंगे। वायरस, विराइड एंड लाइकेंस, विटेकर फेल टू क्लासिफाई वायरस, विराइड एंड लाइकेंस। और वो चले गए, और उनकी भविष्यवाणी खड़ी हो गई। अभी भी क्वेश्चन आते, व्हाट आर द फेल्यूर्स ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन। दोस्तों, तो विटेकर failed to classify viruses, viroid and lichen as because viruses and viroid they are acellular, lichens का उसको स्ट्रक्चर ही समझ में है। सो दिस इज दोस्तों, यही पे लिखता हूं विटेकर का फेल्यूर ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन, फेल्यूर ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन, या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फेल्यूर क्या है दोस्तों? he failed to क्लासिफाई दोस्तों क्या? वायरसेस। और आपको तो पता है वायरस का श्राप कैसा है, पूरा दुनिया को पता है, आपको क्या? तो लग गया विटेकर को, वायरसेस, विराइड और लाइकेंस। हम इसे देखिए डिटेल में पढ़ेंगे, वायरसेस, विराइड और लाइकेंस। याद रखिए। लोग कोई बोलते हैं कि प्रायंस, अरे प्रायन तो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए, विटेकर के टाइम तो प्रायंस नहीं थे। सो वायरसेस, विराइड एंड लाइकेंस ये विटेकर क्लासिफाई नहीं कर पाया। सो दिस इज अबाउट दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके डिटेल में जब हम नहीं जाएंगे, अभी फाउंडेशन बैच में मैंने ये लिया था, पर अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जब भी हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तब जाके देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है।
सेल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि टाइप ऑफ सेल कौन सी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी डिफरेंशिएशन है या नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसा है, ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक है, प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल है, या दोनों है। तो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, प्लांटे कैन बी प्रोकैरियोट, गलत, फाइज जाकिर गलत। ओके, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही आएगा, हमेशा याद रखो, रिमेंबर द बायो फार्मूला। मैं लिख के देता हूँ, बायो फार्मूला मैं लिख के देता हूँ, एक बायो फार्मूला याद रखो दोस्तों, और वो बायो फार्मूला है, एक बायो फार्मूला याद रखो। बायोलॉजी में भी फार्मूला है, क्या बात कर रहे सर, हाँ मैंने निकाले है ये बायो फार्मूला, और ये बायो फार्मूला ये है दोस्तों, दैट इज प्रोकैरियोट इज इक्वल टू, हम जो प्रोकैरियोट की बात करें इसका मतलब हम बैक्टीरिया की बात करें, क्या बात करें, हाँ हम जो प्रोकैरियोट की बात करें हम बैक्टीरिया की बात करें, इज इक्वल टू दोस्तों मोनेरा, इज इक्वल टू मोनेरा, ये याद है, ये बायो फॉर्मूला है, प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब मोनेरा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मतलब एम्स की तरफ चलते हैं, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मतलब एम्स की तरफ जाएंगे, न्यू दिल्ली अंसारी नगर। ओके, जहां पे मोदी जी जाके वैक्सीन लेके आते हैं, उस कॉलेज में पढ़ेंगे हम जहां हमारे पीएम वैक्सीन लेने जाते हैं, और वो चांस है हमारे पास, वो चांस है हमारे पास, उस कॉलेज में जाएंगे जहां हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, उस कॉलेज में जाएंगे जो पूरे देश को बताता है कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल क्या है, कौन सी ट्रीटमेंट कहाँ पे देनी है, उस कॉलेज में पढ़ेंगे दोस्त, और उसी प्रोफेसर से पढ़ेंगे जिन्होंने ये प्रोटोकॉल डिसाइड किया है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स न्यू दिल्ली एंड अ सिंपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाइक धुले एंड अम्बेडकर, याद है, बहुत फर्क है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, हमेशा ऊपर वाली सोच रखो, हमेशा ऊपर वाली। अभी ये हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका जिक्र इन डिटेल नहीं है एनसीईआरटी में, पर फिर भी हमें पता होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ नाम का एक कॉन्सेप्ट है, वो मगर एनसीईआरटी ने इनडायरेक्टली कहा ना कहे तो भी मेंशन किया है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, एनसीईआरटी के डेप्थ में जाएंगे, विड्थ में नहीं दोस्तों, डेप्थ में जाना है, विड्थ में नहीं, हमेशा फोकस ऑन द डेप्थ एंड नॉट ऑन द विड्थ। 4 चीजें बोलता हूं, फोकस ऑन द डेप्थ नॉट ऑन द विड्थ। नंबर 1, बी प्रोडक्टिव, डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव, डोंट बी सीरियस एंड बी सिंसियर। इसका मतलब क्या है, सीरियस मीन्स कि सीरियस स्टूडेंट क्या होते पता है, बताओ, सपोज अपनी छोटी बहन या फिर पेरेंट्स अपने अजी आजोबा टीवी देख रहे हैं, तो सीरियस स्टूडेंट आएगा और टीवी बंद करेगा, तुझे पता नहीं मैं नीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, बंद करिए टीवी, छोटी बहन को बोलेगा, आजोबा तुम्हाला माहित नाही का मी नीटची तयारी करतो, बंद करा ती टीव्ही, आई तुला माहित नाही का ग मला लवकर नाश्ता दे, मी नीटची तयारी करतो, पप्पा तुम्ही बघा ना क्लास, मी नीटची तयारी करतो, मैं नीट की तयारी करो, मैं नीट की तयारी, मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ। अरे डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। सिंसियर स्टूडेंट क्या है कि अगर छोटी बहन टीवी देख रही है या पेरेंट टीवी देख रहे हैं, तो घर खुद के रूम का दरवाजा बंद करेगा और रिक्वेस्ट करेगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर सकते हो, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस। सीरियस वाले हमेशा ड्रामा करेंगे और सिंसियर वाले हमेशा कर्मा करेंगे, कर्म एक्शन लेंगे, और सीरियस वाले हमेशा ड्रामा, हमेशा ड्रामा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ऐसा वैसा। बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, याद रखो। और डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। बिजी वाले क्या करेंगे, ये सीरियस वाले बिजी रहते हैं, हरदम किताब हाथ में, और पूरा ध्यान इधर उधर, इसके मोबाइल के ऐप में या फिर उस गेम में, इस गेम में, आईपीएल में, इधर उधर, पूरा दिन भर बिजी। क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, प्रोडक्ट क्या निकला दिन भर, कुछ भी नहीं, कुछ भी याद नहीं। सो डोंट बी, लिखो कहीं तो भी, डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव, एंड डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, बी सिंसियर। चलो आगे चलते हैं। नाउ
पढ़ते हैं दोस्तों, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, दिस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय, वाव, तो हमेशा ध्यान में याद रखना, याद रखना दोस्तों। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया है? इट इज प्रपोज्ड बाय दोस्तों, इट इज प्रपोज्ड बाय कार्ल ऊस। वाह, कार्ल आणि ऊस लक्षात ठेवायला सोपं आहे। कार्ल ऊस नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा विटेकर से भी आगे हमेशा इंप्रूवमेंट तो वाव है दोस्तों, हमेशा लाइफ में इंप्रूवमेंट होती है, जैसे इस क्लासिफिकेशन में हो रही है, यही तो सीख है यहाँ से। तो इट इज प्रपोज्ड बाय कार्ल ऊस, और कार्ल ऊस ने क्या किया दोस्तों? कार्ल ऊस डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू 2 किंगडम, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इसने क्या किया? ओके, he divided दोस्तों, he divided किंगडम मोनेरा, he divided मोनेरा, जो मोनेरा था, किंगडम मोनेरा into 2 separate kingdom, into 2 separate kingdom, 2 separate kingdom में डिवाइड कर दिया। किसको? किंगडम मोनेरा दोस्तों। तो ये है किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। नो डाउट इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आते हैं, तो इसको इसने डिवाइड कर दिया दोस्तों 2 सेपरेट किंगडम में। एक है आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया। ये क्या है? आर्कीबैक्टीरिया, आर्ची या फिर आर्की, आर्की मीन्स बहुत ही ओल्ड। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको पता होगा, जब आप ये अपनी लेनी है वो देखने जाओगे जो है वेरूल में, तो वहां पे लिखा होता है दोस्तों, या दौलताबाद का जो किला है वो देखने जाओगे, वहां पे लिखा है, नोट लिखा होता है किले के बारे में, और नीचे लिखा होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, म्हणजे पुरातन खाते होते भारताचं। आर्ची मीन्स ओल्ड, ये ओल्ड बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया दोस्तों ये ट्रू बैक्टीरिया। नाउ क्राइटेरिया क्या यूज किया उसने कि इनमें, इन दोनों में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का क्राइटेरिया यूज किया। क्या? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों अलग हैं। इसमें यू आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में दोस्तों, यूबैक्टीरिया की, आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल है दोस्तों, ये अभी किंगडम है, याद रखो क्या है ये? दिस इज किंगडम, दिस इज किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, और ये क्या है दोस्तों? ये है किंगडम, किंगडम यूबैक्टीरिया। अब ये सेपरेट किंगडम है दोस्तों, याद रखो। सो जो सेल वॉल है आर्कीबैक्टीरिया में, द सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, कोई मुझे बता सकता है आप में से? एनीवन, किसी को पता है? किसी को पता है सेल वॉल किससे बनी है दोस्तों? कोई मुझे बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है? अजय, आर्नो, वारवा, सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? बहुत ही, प्रणव नहीं बेटा, सूडो अथर्व शिंदे, वाह बहुत ही बढ़िया। राज पाटिल, बहुत बढ़िया। अथर्व शिंदे, सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन्स, मैंने कहा था, लिख के दिया है। किससे बनी है सेल वॉल? सूडो मीन्स झूठा, पेप्टिडो मीन्स पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, पेप्टिडोग्लाइकेन्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, तो सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन्स से सेल वॉल बनती है। तो और यूबैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेन्स, पेप्टिडोग्लाइकेन्स, पेप्टिडोग्लाइकेन्स। एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रोटीन और अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड प्लस पॉलीसेक्राइड, प्लस पॉलीसेक्राइड से सेल वॉल बनती है बैक्टीरिया में, खास करके यू बैक्टीरिया में। ये ब्रैकेट एमसीक्यू है। नाउ दोस्तों ये टेबल वाले एमसीक्यू है। जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में नहीं लिखा है कहीं पे भी, पर मैं आपको बोल दूंगा। जो सेल मेम्ब्रेन है आर्कीबैक्टीरिया की, जनरली द सेल मेम्ब्रेन इन all the living organism except archaebacteria, it is made up of bilayer of lipid, और यहाँ पे बनती है दोस्तों मोनोलेयर ऑफ लिपिड, और लिपिड भी ब्रांच्ड लिपिड होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट चेन लिपिड है। तो याद रखो दोस्तों, दिस सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मोनोलेयर ऑफ, मोनो एक ही लेयर है, मोनोलेयर ऑफ ब्रांच्ड लिपिड। मैं समझाता हूँ, ब्रांच्ड लिपिड ये कैसी होगी? लाइक दिस, ये एक ही लेयर होगा ऐसा, मोनोलेयर, और लिपिड भी थोड़े से ब्रांच होंगे।
मैं ब्रांचिंग तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, पर ब्रांच लिपिड होंगे। तो सपोज एक फॉस्फोलिपिड का ये मॉलिक्यूल, और यहाँ पे दोस्तों सेल वॉल इज मेड अप, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय लेयर ऑफ दोस्तों स्ट्रेट चेन लिपिड। कैसे लिपिड होते हैं? स्ट्रेट चेन लिपिड। तो लाइक दिस, ये ऐसे, दिस इज वन लेयर। ये हेड और टेल होता है लिपिड का, हमेशा याद रखो। दिस इज वन लेयर, दिस इज वन लेयर, एक लेयर ये हो गया, और दोस्तों ये ऐसा दूसरा लेयर होता है। इसे कहते हैं बाय लेयर ऑफ लिपिड। ये लिपिड मॉलिक्यूल है, हर एक जो सर्कल है वो हेड होता है, और जो लाइन है वो टेल है, मान लो। दिस इज बाय लेयर, और ये है दोस्तों मोनो लेयर ऑफ लिपिड, और वो भी ब्रांच्ड होंगे। सो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन किंगडम आर्चीबैक्टीरिया और किंगडम दोस्तों यूबैक्टीरिया। सो अकॉर्डिंग टू कार्लूस, कौन से किंगडम है हमेशा याद रखो। व्हाट आर द किंगडम अकॉर्डिंग टू कार्लूस दोस्तों? तो वो किंगडम है दैट इज आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांटे एंड एनिमलिया। कौन से किंगडम है? दैट इज, अभी 6 किंगडम कौन से दोस्तों? व्हाट आर द डिफरेंट 6 किंगडम्स? वो है दोस्तों दैट इज आर्कीबैक्टीरिया, एक किंगडम है। आर्कीबैक्टीरिया एक सेपरेट किंगडम है अभी। दिस इज द फर्स्ट किंगडम इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर दोस्तों यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया। फिर है दोस्तों दैट इज प्रोटिस्टा। ये दोनों जो है अभी आर्की और यू बैक्टीरिया, दे आर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा। फिर दोस्तों फंगाई, फिर है प्लांटे और एनिमलिया, प्लांटे एंड एनिमलिया। सो दीज आर 6 किंगडम, याद रखो। दीज आर दोस्तों 6 किंगडम्स अकॉर्डिंग टू कार्ल ऊज। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। और इनका इवोल्यूशन भी ऐसे ही है। सबसे पुराने हैं आर्कीबैक्टीरिया, सबसे पुराने आर्कीबैक्टीरिया, और सबसे एडवांस्ड है किंगडम एनिमलिया। ये हमसे क्यों, ये समझ में आया। और क्राइटेरिया यूज क्या किया? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। और साइंटिस्ट का नाम है कार्ल और ऊस। साइंटिस्ट का नाम क्या है दोस्तों? कार्ल और ऊस। साइंटिस्ट का नाम है कार्ल और ऊस। इज दैट ओके? ओके। साइश बहुत ही बढ़िया, इसके ऊपर आएंगे बेटा। साइश मोनो सैकराइड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, नाग और नाम इसके ऊपर आएंगे, बहुत ही बढ़िया। नहीं, वायरस नॉट इंक्लूडेड इनटू द किंगडम। लाइकेंस मल्टीसेलुलर है, गलत है बेटा। प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक नहीं है, फैज जाकिर। ओके, प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक नहीं है बेटा। ये म्यूरिन वगैरह सब, ये जो है ना नाग नाम, ये आपके पूरे डाउट ना, बिलीव मी, ये सब आगे आने वाला है। यू आर आस्किंग द डाउट जो मैं आगे के लेक्चर में कवर करने वाला हूँ, वो पॉइंट है। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, बी 100% अटेंटिव। मैंने उसी दिन बोला था, बी अ माइंडफुल इन योर लेक्चर। इसी के बारे में सोचो, ये क्या चल रहा है, और इससे रिलेटेड सोचो, इससे रिलेटेड सोचो कि ये क्या चल रहा है, इसे कैसे याद रखेंगे। हाँ ऐसा है क्या, ये 6 किंगडम है। तो अभी क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है, यानी इंफॉर्मेशन बहुत कम है, इसका मतलब आपके पास अभी मैंने कुछ रिसीव, आप धीरे धीरे रिसीव कर रहे हैं। पर जब आपके पास 10 टॉपिक की इंफॉर्मेशन होगी ना, फिर दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हैबिट लगा लो खुद कि जो लेक्चर में चल रहा है, मैं पूरा फोकस उस लेक्चर के ऊपर करूंगा। मेरे दिमाग में चाहे कुछ भी आ जाए, मैं बाजू में लिखते रहूंगा, और अंत में जब डाउट सेशन रहेगा तो मैं पूछता रहूंगा। पर अभी मेरा पूरा फोकस इसके ऊपर लगाना है। ये अगर आपने हैबिट डेवलप कर दी ना दोस्तों, तो आप जीत जाएंगे। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बोलता हूँ, रुक जाओ। आप अपने घर पे हो, ये क्लासरूम नहीं है, और घर पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं, या फिर मैं जो दिख रहा हूँ आपको, या आपके लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, या फिर मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ। जो ऑरा चाहिए, जो ऑरा, ऑरा मीन्स, ऑरा एक होता है हर एक पर्सन का, हर एक जगह का दोस्तों, एक ऑरा होता है।
ऑरा। जब हम वार्ड में चले जाएंगे या फिर ओटी में चले जाएंगे तो ओटी में ऑरा होता है। ओटी में जो 10 या 15 लोग हैं, सभी लोग एक ही के बारे में सोच रहे हैं कि इस पेशेंट को अच्छा करना है, वो ऑरा, वो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। वो इन्वायरमेंट अभी आपके पास नहीं है, ये सबसे क्या है, ये लैकिंग पॉइंट है अभी। तो आपको बनाना है वो ऑरा, आपको बनाना है दोस्तों। और कैसे बनाएंगे? बाय फोकसिंग ऑन योर लेक्चर। आप जब हर बार दूसरा सोचोगे ना, तो ये जो क्या चल रहा है ना, तो इसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। सोचो, सोचना गलत नहीं है, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर सो लकी कि आप सोचते हो। थिंकिंग, लोग सोचते कम और काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए पीछे। हमें सोचना है और काम भी करना है। पर जब भी आपके कोई डाउट्स है तो बाजू में लिख के रखो, लिख के रखो। और जब डाउट सेशन आएगा तो आई विल क्लियर दैट। एक लेक्चर के बाद, हर लेक्चर के बाद डाउट सेशन है तो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। चलो ठीक है, नाउ प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। आगे, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे दो शब्द बोले हैं, मोनोलियर और ब्रांच लिपिड, कभी कभी ये मिस हो जाएगा। मोनोलियर ही रहेगा और लिपिड ब्रांच है या स्ट्रेट चेन है, ये मिस हो जाएगा। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेंस को ही मैंने कहा अमाइनो एसिड और पॉलीसेक्राइड है, तो ये पॉइंट भी मिस हो सकता है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी मिस हो सकता है, ये याद रखो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते। ओके, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगी। नहीं नहीं, इसी की कोई भी, even Carl Lewis cannot classify viruses and viroids because दोस्तों they are acellular, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? इवन दो कार्ल लूइस भी नहीं क्लासिफाई कर पाए। ओके, वो तो विटेकर ने ही कहा कि मैं क्लासिफाई नहीं कर सकता, बाकी ने किसी ने भी उसे क्लासिफाई नहीं किया, क्योंकि वायरसेस असेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। सेल इज एब्सेंट इन वायरसेस, सिंपल लैंग्वेज में लिखो। नॉन सेलुलर वायरसेस के सामने लिखो, वायरसेस इज इक्वल टू नॉन सेलुलर, is equal to acellular, is equal to cell is absent. Okay, cell is absent. Now चलो, ओके। सो दोस्तों अब क्या है, आप सबको किंगडम पता है। अभी 10 तक आपको ना कितने किंगडम पता थे? 5। अभी कितने किंगडम पता चल गए? 6। नाउ शायद आपने डोमेन नाम सुना है। डोमेन किंगडम के ऊपर भी है दोस्तों। और ये कार्लूस है ना, all the living organism on planet Earth are, they are grouped into 3 domains। 3 ही डोमेन में रखा है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और वायरसेस आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ सो दोस्तों देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ, और ये जो कॉन्सेप्ट है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, डोमेन्स का मतलब है ये किंगडम से भी बढ़कर एक कैटेगरी है ऊपर वाली। और ये भी किसने दिया है दोस्तों? ये भी कॉन्सेप्ट दिया है बाय कार्ल ऊस। ये भी क्वेश्चन आएगा, कार्ल ऊस प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो इसने क्या किया? बाय यूजिंग, उसने क्राइटेरिया यूज किया दोस्तों, दैट इज 16s rRNA के ऊपर का जो सीक्वेंस है, 16s rRNA, दिस इज एन आरएनए। आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और वो 16s मींस स्वेडबर्ग यूनिट होता है। वो यस मींस स्वेडबर्ग यूनिट, यस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, उसके डेंसिटी और इसके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। तो सो बाय यूजिंग दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन 16s rRNA, ये अलग अलग था सब में। तो दोस्तों ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स। और वो 3 डोमेन क्या है? जो पहला डोमेन है दोस्तों, जो पहला डोमेन है उसका नाम है आर्किया। उसका नाम क्या है? आर्किया। दिस इज फर्स्ट डोमेन। जो सेकंड डोमेन है दोस्तों उसका नाम है बैक्टीरिया। नो, बैक्टीरिया इज अ डोमेन, आर्किया बैक्टीरिया, याद रखो। और जो तीसरा डोमेन है दोस्तों उसका नाम है यूकैरिया। क्या नाम है? यूकैरिया, यूकैरिया, याद रखो। तो आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, these are the 3 domains
अभी कंफ्यूजन है, मैं आपको समझाता हूँ। नाउ दोस्तों, ये जो आर्किया है इनमें आते हैं किंगडम। ये जो आर्किया है इसमें कौन सा किंगडम है? दैट इज किंगडम आर्की बैक्टीरिया। दिस इज अ किंगडम एंड आर्किया इज अ डोमेन। दोस्तों इसमें आएगा दैट इज यू बैक्टीरिया इज द किंगडम। यू बैक्टीरिया क्या है दोस्तों? किंगडम है। और यू बैक्टीरिया क्या है? किंगडम है। और बैक्टीरिया डोमेन है। और इस आर्किया में 4 किंगडम आते हैं, सॉरी यूकैरिया में 4 किंगडम आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, एमसीक्यू, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया। तो प्लीज, शायद आप लोग किताब में देख रहे होंगे दोस्तों, तो कुछ चीजें किताब में नहीं मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, आपने 3 इडियट्स नाम की मूवी देखी होगी। ओके, उस वो जो किताब लिखा था चेतन भगत ने, मैंने वो सेकंड ईयर में ही पढ़ा था एमबीबीएस में। उस किताब का नाम है 5.1 बाय चेतन भगत। तो मैं अगर किताब लेके बैठू सामने 5.1 और 3 इडियट सामने देखूं, अरे ये सीन हुआ क्या नहीं, ये सीन हुआ क्या नहीं, अरे ये, तो ना मैं किताब घर से पढ़ पाऊंगा, ना मैं मूवी ठीक से देख पाऊंगा। तो दोस्तों किताब पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं? सही काम सही टाइम पे करना है। अभी लेक्चर चालू है तो 100% लेक्चर ही अटेंड करेंगे और फिर जाके किताब खोलेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं? जब लेक्चर चालू है तब किताब देखते हैं, और जब पढ़ना होता है तब टीवी देखते हैं। गलत है, गलत है, ऐसा मत करो। अभी जो भी आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का लेक्चर चल रहा है दोस्तों, जो बच्चे 7 मीन्स 100% अटेंटिव होते हैं, 80% उनका वही क्लियर हो जाता है क्लास में ही, सभी क्लियर हो जाता है और याद भी रहता है उन्हें। और जो बच्चे ध्यान इधर उधर भटकाते हैं, उनको फिर दिक्कत आती है आगे चलती है। ये मेरी सजेशन है, आपको जो करना है वो करो। पर मुझे लगता है कि अगर हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखेंगे, उस मूवी के बेस, जिस किताब के बेस ऊपर ये मूवी है, उसको बाद में पढ़ेंगे। पर इसकी मजा कुछ अलग है, किताब की मजा कुछ अलग है। तो ये नहीं हम ये करेंगे। सो यूकैरिया में 4 किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांट एंड एनिमल। तो ये है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये दोनों प्रोकैरियोटिक है दोस्तों, ये दोनों प्रोकैरियोटिक। तो आज से ये कंफ्यूजन है कि बैक्टीरिया क्या है, डोमेन है या किंगडम है, और यू बैक्टीरिया क्या है दोस्तों। तो याद रखेंगे बीडी। याद, बीडी आपको पता है ना? बीडी, बीडीसी नाम का किताब है एनाटॉमी का, बीडी। और ये बीडी भी आता है ना, बीडी जलेले जिगर से किया, जिगर माँ बड़ी आग है। ओके, तो ये जो बीडी है दोस्तों, इसका मतलब बैक्टीरिया और डोमेन्स, इसके याद रखेंगे। बीडी का मतलब क्या है? बैक्टीरिया इज डोमेन। बैक्टीरिया क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया इज डोमेन है, बीडी। ओके, बीडी से याद रखें, बैक्टीरिया इज डोमेन, बीडी। क्योंकि ये कंफ्यूज होता है, बाद में कंफ्यूज होगा कि यू बैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरिया क्या है। बीडी याद रखेंगे, बैक्टीरिया इज डोमेन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, समझे आप? दीज आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, यस और नो? दीज आर दोस्तों 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, समझे या नहीं? ओके, डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आई थिंक दिस इज स्लाइड नंबर कितना है? 5। स्लाइड नंबर 5 हो गई। डोमेन्स का मतलब होता है दोस्तों किंगडम के ऊपर वाला, ये है डोमेन्स। मीन्स डोमेन्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दोस्तों, उसमें किंगडम होते हैं। डोमेन्स 3 पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कार्ल लुईस क्लासिफाइड ऑल 3 ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। याद रखो, कार्ल लुईस he classified all living organisms, he classified all living organisms into 3 groups, known as domain. उन ग्रुप को क्या बोला जाता है? डोमेन्स ऑफ लाइफ, नोन एज डोमेन्स ऑफ लाइफ। जो लाइफ है प्लैनेट अर्थ के ऊपर, वो 3 डोमेन में डिवाइड की है, 3 ग्रुप में डिवाइड की है, बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
based on sequence of nucleotide of sequence of nucleotides in किसमें 16 यस आर आरएनए में कैसा सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड तो उसके ऊपर ओके किसके ऊपर दोस्तों दैट इज sequence of nucleotide. This is a monomer of sequence of nucleotide in 16 yes rRNA. Yeah. So these are the 3 domains of life. Is that clear हो दोस्तों? ये क्लियर है क्या नहीं बोलो? ये क्लियर है? ओके ठीक है ये वाली स्टेटमेंट है बेटा ऑथर कि ही मींस कार्ल वुज क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 ग्रुप्स उसने पूरे ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ओके एक मिनट उनको उसने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया ओके और वो 3 ग्रुप को कहा जाता है दोस्तों डोमेन्स उन्हें क्या बोला जाएगा डोमेन्स उन्हें बोला जाता है डोमेन्स ये याद ठीक है ये किंगडम से बढ़कर है किंगडम से भी आगे है डोमेन्स अभी तो पूरे दुनिया में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया है द मोस्ट एक्सेप्टेड वन इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ओके द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल क्या है दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बट ये रिसेंट है कौन सा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तो अगर किसी ने पूछा आपको कि लाइफ के कितने डोमेन हैं याद रखो दोस्तों लाइफ के डोमेन है दैट इज आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट these are the 3 domains of एक बायो फॉर्मूला बनाता हूं याद रख सकते हो वैसे ठीक है ये क्लियर है बायो फॉर्मूला से कैसे याद रखेंगे बायो फॉर्मूला दोस्तों बायो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखें दैट इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by कार्ल लिनियस कीवर्ड पकड़ेंगे दैट इज किंगडम प्लांटे एंड एनिमलिया कौन से किंगडम इंट्रोड्यूस किए किंगडम प्लांटे एंड एनिमलिया ये इंट्रोड्यूस कर दिया एनिमलिया ये इंट्रोड्यूस कर दिया नंबर 1 नंबर 2 दोस्तों दैट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिस कॉन्सेप्ट इज given by दोस्तों दैट इज Haeckel and he proposed kingdom protista that is 4 kingdom classification proposed by Copeland and he introduced kingdom Monera 5 kingdom classification किसने दिया RH Whittaker पूरी लाइफ डेडिकेट की है दोस्तों लोगों ने ये काम ये प्रपोज करने में और हमें याद नहीं रखते हम इसे तो इनको गुस्सा आता है फिर किंगडम फंगा है और एग्जाम में याद नहीं आते दोस्तों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया कार्ल और उसने कौन से किंगडम इंट्रोड्यूस किए किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया न्यू बैक्टीरिया किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया 2 इंट्रोड्यूस किए by dividing kingdom Monera
तो याद रखो। सो ये बायो फॉर्मूलाज है, दीज आर दोस्तों बायो फॉर्मूला, कीवर्ड पकड़ेंगे और याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? अभी बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। ओके, ये क्लियर है दोस्तों? बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। नाउ ये क्लियर है? तेजस्विनी वानी 16 इयर्स का मतलब होता है, ये आगे चल के आएगा, ये स्वेडबर्ग यूनिट होता है। इसे कहते हैं बेटा स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, ये जो यस होता है 16 यस का जो यस है, ये यस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये क्या करता है? इट मेजर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम। दोस्तों ये क्या मेजर करता है? ये आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा। इट मेजर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। समझा था? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है समझा देता हूं। इट मेजर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम। किसी ने क्वेश्चन पूछा है इसलिए, फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि डाउट लेक्चर के बाद पूछो ना। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? सेटल डाउन। सपोज किसी भी सॉल्यूशन में राइबोसोम है दोस्त, सपोज ये है बीकर और इस बीकर में मान लो कि राइबोसोम है, इसकी साइज इतनी है, एक छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये मीडियम साइज का है, या इससे बड़े बड़े है। तो आपसे मेरा सवाल है, सबसे पहले कौन सेटल हो जाएगा? बोलो, सबसे पहले कौन से सेटल हो जाएंगे? छोटे वाले या बड़े वाले या मीडियम साइज? बोलो, सबसे पहले कौन सेटल हो जाएंगे? नीचे, नीचे। किसका सेडिमेंटेशन होगा सबसे पहले? लार्जर वन, लार्जर वन। सिंपल सी बात है ना। अगर हम, अगर लार्ज दोस्तों, लार्जर वन विल बी सेटल फर्स्ट, तो उनका स्वेडबर्ग यूनिट सपोज 70 यस, तो उनका ज्यादा है, 80 यस ज्यादा है, 60 यस मीन्स वो बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है राइबोसोम। ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ओके, 23 यस मीन्स बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है। ये साइज और डेंसिटी के ऊपर हम उस यूनिट का नाम देते हैं दोस्तों, यूनिट नापते हैं। मेजर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम। लार्जर इज द राइबोसोम, दैट इज फास्टर विल बी इट्स सेडिमेंटेशन। वो जल्दी सेडिमेंट होगा, सेटल हो जाएगा। तो ये स्वेडबर्ग यूनिट, इट मेजर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम। इट मेजर दोस्तों क्या देखेगा? साइज एंड डेंसिटी देखता है, साइज एंड डेंसिटी, ये दो चीजें देखी जाती, साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम, ताकि वो जल्दी कौन सा सेटल हो जाए। और जितना बड़ा, सपोज 80s मतलब वो साइज से बड़ा है, उसे लार्जर राइबोसोम कहते हैं, और 70 स्मॉलर, और ये 16 ईयर्स, ये तो उनके भी सब यूनिट है। समझे दोस्तों? शुरुआत करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। वाओ! और पहले कैसे जाएंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हर एक किंगडम। किंगडम मोनेरा, हमेशा ये बायो फॉर्मूला बनाते जाओ दोस्तों। ओके, बायो फॉर्मूला, कंफ्यूजर याद रखो, कंफ्यूजर भी हमेशा याद रखो, क्योंकि वो दो कंफ्यूजर है। कौन से? दैट इज बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। और कौन सा डोमेन है और कौन सा किंगडम है हमें पता होना चाहिए, तो मैंने याद रखा बीडी से। दोस्तों बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा शब्द कहां से आया? बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी दोस्तों। मोनेरा, मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब होता है वन, सो दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वन का मतलब होता है यूनी, सो दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये तो है दोस्तों। पर मैं अगर बात करूं इसके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक के भी पहले, सो दोस्तों किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स दोस्तों, चलो ऐसे लिखते हैं, इट इंक्लूड्स मोस्ट प्रिमेटिव, सबसे पुराने, लाइफ सबसे पुराने, मोस्ट प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड दोस्तों मोस्ट एंशियंट मीन्स पुराने, ये शब्द आएगा प्रिमेटिव या फिर एंशियंट। इस इट इंक्लूड दोस्तों मोस्ट अबंडेंट,
सबसे ज्यादा, जिनकी लोक संख्या सबसे ज्यादा है। मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट एंशिएंट, मोस्ट अबंडेंट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, simplest. Okay, so it includes most primitive, most ancient, most abundant, smallest and simplest microorganisms. ये है दोस्तों किंगडम मोनेरा में क्या है, इट इंक्लूड मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट एंशिएंट, मोस्ट प्रिमिटिव मीन सबसे पुराने, ओल्डेस्ट, इसका दोनों का मतलब होता है दोस्तों ओल्डेस्ट, मोस्ट अबंडेंट मीन सबसे ज्यादा, स्मॉलेस्ट साइज भी छोटी है, और सिंपलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म दोस्तों किंगडम मोनेरा में होते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, याद रखिए दोस्तों, जो बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर मीन्स, इसका मतलब है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, केवल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। बैक्टीरिया सोल मेंबर, सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा, किंगडम मोनेरा के एकमेव मेंबर है, और वो है दोस्तों बैक्टीरिया, और दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इसको एक साइंटिफिक शब्द है, कोई मुझे बता सकता है? बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, कहीं पे भी जाओ, वाटर, एयर, कहीं पे भी। ओके, टेरेस्ट्रियल पूरे हैबिटेट है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे कहते हैं दोस्तों ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। और सम बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जहां दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाएंगे। ओके, ये भी याद रखो दोस्तों, सम बैक्टीरिया कैन फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट, बैक्टीरिया कैन फाउंड इन extreme habitat, extreme means extreme habitat like कौन से दोस्तों, फॉर एग्जांपल हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी से झरे, डेजर्ट, डीप ओशियन, स्नो, इस सब में पाया जाता है दोस्तों। सम बैक्टीरिया कैन फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट लाइक दोस्तों, दैट इज हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग म्हणजे गरम पाण्याचे झरे, हॉट स्प्रिंग दोस्तों। नंबर 2 दैट इज कुछ पाए जाएंगे डेजर्ट में। नंबर 3 दैट इज स्नो, और नंबर 4 दोस्तों दैट इज अ डीप सी, या फिर ओशियन में पाए जाएंगे। हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप सी, या फिर डीप ओशियन में। ओके, हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं डीप सी, यहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं दोस्तों, खास करके वहां पे अर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग मीन्स गर्म पानी से झरे, और यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे हमें, ना प्रोटिस्टा मिलेंगे, ना फंगा मिलेंगे, ना प्लांट, ना एनिमल, और बैक्टीरिया कैन बी फाउंड एवरीवेयर, उसे कहते दोस्तों दीज आर ओमनी प्रेजेंट। सो दिस इज स्लाइड नंबर, हम बात करेंगे, ये है सबको 7, 6 लिख के लिखना बाकी रह गया। सो दिस इज स्लाइड नंबर 7, किंगडम मोनेरा की शुरुआत की है दोस्तों। कल बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ओमनी प्रेजेंट एंड कॉस्मोपॉलिटन। दोनों का मतलब सेम ही है, बट दोनों का मतलब सेम ही है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, दोनों का मतलब सेम ही है, बट ओमनी प्रेजेंट मीन्स हर जगह पे, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स एयर में है, वाटर में है, और लैंड के ऊपर भी है, पर ओमनी प्रेजेंट मीन्स जहां पे दूसरे लोग नहीं है, दूसरा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां पे भी है, इसका मतलब कहेंगे ओमनी प्रेजेंट मीन्स दे हैव लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, हर जगह पे है, कहीं पे भी, हमारे बॉडी के ऊपर भी है, स्किन के ऊपर, और हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हो। ओके, सो ये शुरुआत है, कैसे जाएंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। कल बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। ओके, फिर दोस्तों वो जो स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर, वो जो क्राइटेरिया है ना विटेकर के, एनसीईआरटी वाले, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप।
तो मैं ये कोशिश करूंगा दोस्तों कि 12 के पूरे साइंस के, पूरे मीन्स 11 12 के साइंस के जितने भी बैक्टीरिया पॉसिबल है मैं यहीं पे लिख दूंगा। एक चार्ट बनाएंगे, मेरे पास वो चार्ट है। तो आप बोलोगे सर ये तो बैक्टीरिया का यूज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, वो बाद में काम आ जाएगा। पूरा 12th होने के बाद, पूरा सिलेबस होने के बाद सर बोलेंगे यार क्या बढ़िया था, क्या बढ़िया है वो चार्ट, पूरे बैक्टीरिया मेरे पास है। तो पूरे बैक्टीरिया जितने भी है मैंने इकट्ठा किए हैं, तो हम जो यूज ऑफ बैक्टीरिया होते हैं ना वहां पे डालेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज जानेंगे, क्या क्या अलग अलग बैक्टीरियल डिसीज है, और बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसा होता है ये जानेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है ये जानेंगे, उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है ये जानेंगे। किंगडम मोनेरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों, बहुत डिटेल में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो कल से शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ये ये देखो, अभी कभी कभी सिलेबस नहीं होता तो डीपीपी में ना सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया नहीं ना वो मैं डालूंगा नहीं। तो और कभी सिलेबस हुआ है तो 15 आएंगे। ठीक है, ये पहले 3-4 दिन के लिए ऐसा रहेगा, फिर बाद में सिलेबस होता है तो क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या शुरू करने वाले हैं, आज नहीं करने पर परसों से हम डीएनआरपी शुरू करेंगे इवनिंग को, डेली एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वही हम टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। अगर पॉसिबल है तो जाके टेक्स्ट बुक खरीद लो, अगर कहीं पे मिलती हो तो, अगर बंद है तो डाउनलोड करो, मैंने ग्रुप के ऊपर भेजा है। ओके, और जिनको एडमिशन कंफर्म है वो प्लीज एडमिशन ले लो, क्योंकि आपको नोट्स मिल जाएंगे जहां पे एमसीक्यू है। नोट्स एक सॉरी, ठीक है, तो दोस्तों उस नोट्स में ना क्या है, एमसीक्यू है, तो ये एक फायदा होगा आपको, ये एक फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, हाँ वेट वेट वेट, एमसीक्यू ऑफ द डे लेंगे, एक एमसीक्यू ऑफ द डे लेंगे। चलो दोस्तों, चलो देखते हैं। आप मुझे बना के भेजो एमसीक्यू ऑफ द डे, एमसीक्यू ऑफ द डे। all of the following are all of the following are दोस्तों are unicellular prokaryotes, unicellular prokaryotes, prokaryotes except ऑप्शन है एनाबीना साइकेडी, एनाबीना साइकेडी, एनाबीना साइकेडी, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों दैट इज, या फिर एनाबीना साइकेडी छोड़ो, एनाबीना लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ए बी सी, एनाबीना लैक्टोबैसिलस अमीबा, अमीबा डी पेनिसिलियम, और ई दोस्तों दैट इज स्टेफाइलोकोकस। चलो बोलो, ऑप्शन में है, ऑप्शन ये तो ये होगा दोस्तों, ऑप्शन 1 दैट इज ए एंड बी,
ऑप्शन 2 that is B and C. ऑप्शन 3 that is दोस्तों C and D. ऑप्शन 4 that is D and E. चलो बोलो बोलो. All of the following are unicellular prokaryotes except. बहुत बढ़िया पीयूष. शश आप स्मार्ट बन गए. वाह. अश्विनी बढ़िया. राज, वेदांश, अनिकेत सोचो बेटा. समृद्धि, अक्षय सोचो. अंजलि जाधव वाह. स्नेहा, चेतन, श्रेया, सृष्टि इंगले बहुत बढ़िया. सेजल पाटिल सोचना पड़ेगा बेटा. अजय वाह. अजय सोचो बेटा सोचो. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स म्हणजेच मैंने पूछा है बैक्टीरिया कौन है. मैंने पूछा है कि इनमें से बैक्टीरिया कौन कौन है. तो कौन कौन है रे भाई बैक्टीरिया. इनमें से बैक्टीरिया कौन कौन नहीं है क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरिया एक्सेप्ट एनाबीना नॉस्टक. ओके नॉस्टक एनाबीना साइनोबैक्टीरिया ये तो आपको पता है. तो दोस्तों एनाबीना बैक्टीरिया है. लैक्टोबैसिलस ये भी एक बैक्टीरिया. अमीबा प्रोटिस्टा है. अमीबा प्रोटिस्टा. पेनिसिलियम क्या है. नो डाउट ये पेनिस अमीबा क्या है. प्रोटिस्ट है. प्रोटिस्ट. नाउ पेनिसिलियम क्या है कोई मुझे बता सकता है. बिलोंग टू व्हिच किंगडम. पेनिसिलियम बिलोंग टू व्हिच किंगडम. बहुत बढ़िया. नंदिनी मस्के वाओ. फंगाई आयुष दीक्षांत. इट बिलोंग टू किंगडम फंगाई. और फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस पेनिसिलियम नोटाटम. और ये भी दोस्तों बैक्टीरिया है. ये भी स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है. ये दोनों भी बैक्टीरिया है. तो मैंने बैक्टीरिया कौन से है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एक्सेप्ट. तो आंसर क्या दोस्तों. सी एंड डी विल बी द आंसर. दिस इज द एमसीक्यू ऑफ द डे. बहुत बढ़िया. चिन्मय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इट. बहुत बढ़िया. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इट. समझे. तो आपके जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं. ये डाउट आप रेडी हो. आर यू रेडी. आपके डाउट के साथ यू कैन आस्क मी. 6 के ज्यादा और कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. 6th वाला लास्ट है दोस्तों. ये वाला लास्ट. ओके रुक जाओ मैं ये मिटा देता हूं ताकि समझ में आए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं. ये क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. ये आज मुझे भी पता नहीं था कि मैं आज ये क्वेश्चन बनाने वाला. पर ये हमें सीखना है. और एग्जामिनर जो है दोस्तों उनको पता नहीं होता कि वो कौन से क्वेश्चन बनाने वाले हैं. क्या किया जाता है आपको बताऊं. पेपर कैसे निकाला जाता है किसी को पता नहीं है कि आपका पेपर कौन निकालेगा. 3 महीने पहले या फिर 1-2 महीने पहले दोस्तों उनको बुलाया जाता है पेपर के 2-3 महीने पहले. रुक जाओ. दिल्ली में जो एनसीईआरटी है वहां पे. और फिर उनको ये भी पता नहीं कि कौन से टॉपिक के ऊपर पेपर निकालना है. कि उनको बोला जाता है ये जो 2 टॉपिक है उसके ऊपर आप एक 10-20 एमसीक्यू दे दो. 2 टॉपिक के ऊपर. ऐसे बहुत सारे पूरे इंडिया से लोगों को बुलाया जाता है और हाथ में सिर्फ एनसीईआरटी का बुक दिया जाता है. इसी से निकालना है. इसी से निकालना है या फिर इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन. ज्यादा इधर उधर जाने का नहीं. डेप्थ में जाओ विड्थ में नहीं. दूसरा किताब कुछ भी नहीं. वो खुद एनसीईआरटी किताब देते हैं और फिर वो क्वेश्चन निकाला जाता है. और ऐसे बहुत सारे टीचर को बुलाया जाता है. सपोज मैं एक टीचर हूँ तो मुझसे सपोज 10 क्वेश्चन ले लिए तो वो आएंगे या नहीं मुझे पता नहीं है. मेरे 10 वाले क्वेश्चन और उसके अलग अलग सेट बनाए जाएंगे. तो कौन से सेट में मेरे 10 रहेंगे. मेरे 10 सेलेक्ट हुए हैं या 3 सेलेक्ट हुए हैं या 4 सेलेक्ट हुए हैं किसी को पता नहीं है. तो ये ऐसा पेपर होता है दोस्तों हमेशा. चलो यू सेड बैक्टीरिया इज इक्वल टू मोनेरा. तो हम डोमेन थ्योरी में व्हेन वाज द 6th क्लासिफिकेशन डन. ये रिसेंट है पर उसका ईयर नहीं है पर फिर भी एक बार पढ़ के बताता हूँ मैं. स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया है चैतन्य. स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया जो स्किन इन्फेक्शन कॉज करती है. डीएनआरपी कब होगा. परसों से शुरू होगा.
व्हाट आर द पर्पस फॉर डोमेन? कुछ भी पर्पस नहीं है डोमेन का, पर पूरी दुनिया को उसने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। पर्पस तो क्लासिफिकेशन का यही है ताकि वो इजीली हमें पता चले पढ़ाई करना। सूडो पेप्टिडोग्लाइकेंस का मतलब होता है दोस्तों, उसमें ना प्रोटीन और प्रोटीन्स, और वो लगता तो है प्रोटीन और अमीनो एसिड जैसा, सॉरी प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जैसा, पर वैसा होता नहीं है। वो लगता तो है कि पेप्टिडोग्लाइकेन जैसा है, पर वैसा होता नहीं है। जब हम पेप्टिडोग्लाइकेन पता चलेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे बैक्टीरिया के सेल वन में, तब हम सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है ये भी जानेंगे। व्हाट इज द लाइकेंस? संजोर बेटा, लाइकेंस इट इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगाई। जब अलगी और फंगाई एक साथ रहते हैं तो उसको कहते हैं लाइकेंस। मैं बात करूंगा, ये आने वाला है सिलेबस में। म्यूरिन नाम का एक एसिड होता है बेटो, म्यूरिन नाम का एक केमिकल है जो पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल में होता है। जब आएगा ना तब पढ़ेंगे म्यूरिन और सेल वॉल। वो सूडो म्यूरिन होता है आर्किबैक्टेरिया में, और म्यूरिन होता है बैक्टीरिया में। एमसीक्यू ची बुक क्लासच्या ऑफिस मध्ये भेटेल का? पीडीएफ? पीडीएफ नाही आहे बेटा, हार्ड कॉपी मिळेल, ते पण काही दिवसामध्ये मिळेल. सर सेल मध्ये प्रोटीन एंड लिपिड, सो व्हाट इज सूडो? सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, सो व्हाट इज सूडो पेप्टिडोग्लाइकेंस? अभिजीत सावंत, सूडो पेप्टिडोग्लाइकेंस इसका मतलब है कि पेप्टिडोग्लाइकेंस जैसा नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकेंस जैसा दिखता है पर पेप्टिडोग्लाइकेंस जैसा नहीं है, इसे कहेंगे सूडो पेप्टिडोग्लाइकेंस। ओके, ऍडमिशन सुरू आहे, तुम्ही घेऊ शकताय. हाँ, डीएनआरपी इवनिंग क्लास, एक्सेप्शन टू प्रोटिस्टा, मतलब अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया है। डिफरेंस बिटवीन काइटिन और क्या पूछा? डीएनआरपी 2 दिन के बाद शुरू होगा, परसों से शुरू करेंगे। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन एयर, वाटर एंड ऑन लैंड आल्सो, इसे कहेंगे कॉस्मोपॉलिटियन।